स्टार तो आप ही है सर, आप ही ना बोलिएगा। हैं? स्टार तो आप ही ना कल स्टार्ट कीजिएगा। हाँ হিন্দি বাংলা মিলিয়ে আমি বলছি আজকে ওকে, বারবার দুটো প্রেস মিট আমি হিন্দিতে বলেছেন আর এই প্রেস মিট আমি কি হিন্দি বাংলা মিলিয়ে বলবো না जैसा बोलिए বলুন आपको जैसा बोलिए বাংলা मिला बोले हिंदी मिला के बोलिए, मिला के बोलिए सर। दादा यही कहानी आने वाला दिन आने वाला है क्या ঠিক আছে এই आधा আপনার हिंदी মধ্যে आधा মেজরিটি बांग्ला কি ये আছে बोला बांग्ला মেজরিটি ये কি बोला আছে हिंदी इतना दिन तो ये सब नहीं था আপনার মধ্যে মেজরিটি কি আছে মেজরিটি বাংলা হিন্দি একসাথে হ্যাঁ বাংলা হিন্দি একসাথে একসাথে না ই আমি মানবো না হিন্দি হিন্দি এই ঠিকই বলছি অতদিন কেন বলছিল না এখন বাংলা হিন্দি এখন বাংলা হিন্দি হচ্ছে কেন আদৌ যেটা ছিল না হ্যাঁ এই জন্য বেনিফিট হয়ে যাচ্ছে তৃণমূল এই জন্য বেনিফিট তৃণমূল পাচ্ছে পশ্চিম বেঙ্গলের ক্ষমতাতে এই জন্য তৃণমূল আছে না ওকে স্টার্ট मलयालम আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই ছোট করে একটা প্রেস মিট আমি আমার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়তে ডাকা হয়েছে এই প্রেস মিটে মেইন উদ্দেশ্য এই আছে যে কালকে পান্ডেশ্বর বিধানসভাতে ভারতবর্ষে হোম মিনিস্টার अमित शाह जी আসেছিল বিজেপি ক্যান্ডিডেটে প্রচার করা হলো আর প্রচারের সময় কিছু বক্তব্য এইরকম রেখেছে যা প্রতিবাদ আমি করতে চাই আজকে এই প্রেস মিটে যে লোক আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করতে চায় আমি কাজ করে বলছি অমিত শাহ নামে অমিত শাহ কে প্রথম ছিল গুজরাটে একটু স্টেট মন্ত্রী ছিল পরে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছে বিজেপি গভর্নমেন্টে তো ওই সময় চিফ মিনিস্টার ছিল নরেন্দ্র মোদী যার ক্যাবিনেটে হোম মিনিস্টার ছিল হরেন পান্ডিয়া যার মার্ডার কেসে অমিত শাহকে জেল যেতে হয়েছে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিক যাকে জেল থেকে বাহার করেছিল যে সময় গুজরাট হাইকোর্টের জজ ছিল যাকে পরে একটু সারপ্রাইজ দিয়েছে ভারতবর্ষের গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যাকে সুপ্রিম কোর্টে জজ করে লিখে আসছে যে মার্ডার কেসে আসামি আসছেন পশ্চিম বেঙ্গলে আর পশ্চিম বেঙ্গলে ধরতিতে দাঁড়িয়ে কোল মাফিয়া কয়লা বালি মাফিয়া আর কি গাই মাফিয়া যার মাফিয়া নাম লিখছে তো ভালো লাগছে না এই নিজে একটা মাফিয়া আছে নিজে একটা মাফিয়া সর্দার আছে অমিত শাহ অমিত শাহ থেকে বড় মাফিয়া আজ ভারতবর্ষে কোই স্টেটে নেই কোই কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে বলতে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নেই এরকম একটা মাফিয়া আর এই মাফিয়া পশ্চিম বেঙ্গলে ঢুকে পশ্চিম বেঙ্গলের সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে আর স্টেজে দাঁড়িয়ে কি বলেছেন এক কথা বলেছিল দিদি নবরত্ন মে এক তে চিদম্বর অমিত শাহ বাচ্চা আছে কিছু জানি না বেঙ্গলের ব্যাপারে কিছু জানি না ইলেকশনের সময় 10-20 বার আসছে ইচ্ছারে কিছু জানি না মমতাদি নবরত্নের মধ্যে ছিল চিদম্বর প্রচুর দূরে ছিল একটা মামুলি একটা ওয়ার্কারের জায়গাতে ছিল পার্টিতে দায়িত্ব দিয়েছি বলে কি ও নবরত্ন হয়ে গেছে বিজেপিতে চলে গেছে বলে নবরত্ন হয়ে গেছে কি কারণে বিজেপিতে পড়ে গেছিল তৃণমূল থেকে সুবিধা নেওয়ার পরে পরে দেখছে আমি কেসে ফসে যাবে আমাকে বাঁচার দরকার আমার টাকা বাঁচাবার দরকার এই জন্য জেল যাওয়ার বাঁচার জন্য ও বিজেপিতে জয়েন করেছে যাকে বিজেপি মালা পেনিয়ে যাকে পার্টিতে ওয়েলকাম করেছে আজকে কয়লা মাফিয়া বিরুদ্ধে বলছে যে কয়লা মাফিয়া প্রচারে আসেছিল পান্ডেশ্বরে যে স্টেজে দাঁড়িয়ে যার হাত তুলেছিল ও নিজে কয়লা মাফিয়া যার কার্যকাল में কয়লা यहाँ सबसे বেশি চলেছে কি কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে জিজ্ঞেস করুন যে যে আজ আরেস্টে আছে যাকে জিজ্ঞেস করুন
যার মধ্যে এই পার্টনার ছিল কি না, যার পার্টনার ছিল কি না। আজকে লম্বা লম্বা ডায়লগ বলছে। और एक तो माफिया को टिकट दिए, कोयला माफिया और लोहा माफिया आसनसोले टिकट दिए। এই বিজেপি পার্টি প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের মধ্যে আপনি দেখবে পার্সেন্টেজ ক্যান্ডিডেট আপনার মাফিয়া মধ্যে আছে। कोई कोयलार माफिया আছে, कोई लोहार माफिया আছে, कोई जमीन माफिया আছে, कोई दलाल আছে, कोई रेप केसे आसामी আছে। আপনার এই জেলার মধ্যে रेप केसे आसामी আছে বিজেপি ক্যান্ডিডেট। তো বিজেপি কাকে টিকিট দিয়েছে? তৃণমূলে একটা লোককে বিজেপি দেখিয়ে দিন, এটা মাফিয়া को টিকিট দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস মামদা দিয়ে তো মাফিয়াকে টিকিট দিয়েছে, এই অমিত শাহ একটাকে দেখিয়ে দিন। যা কিছু জানি না, যার হাত ধরে ধুলছে, যাকে ভোট দিতে বলছেন, ও কি মাফিয়া আছে, কি ছিল ও জানে? ও কিছু জানে না, পাবলিককে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে। ফাউন্ডেশনের মানুষ যাকে জবাব দেবে 2 তারিখ পরে ও জানে যাবে। আপনি কাকে কাকে টিকিট দিয়েছেন দেখুন আপনার হিস্ট্রি। আজ কয়লা মাফিয়া, লোহা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, গাই মাফিয়া কি কি বলছেন আপনি পশ্চিম বেঙ্গলের ধরতিতে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার পার্টিতে যে যে বিজেপিতে ক্যান্ডিডেট করেছে, যার ইতিহাস আপনি দেখুন। শুভেন্দু অধিকারী মাফিয়া নেই, ডেকেট নেই, কত ডেকেটি করে চলে গেছে। আজকে ও 800-900 ফ্লোরের মালিক। কোথা থেকে টাকা আসছে দেখুন, আর টাকা বাঁচাবার জন্য বিজেপিতে গিয়েছে। আপনি যার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, রাজীব ব্যানার্জি বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই, আপনার কিছু বলার নেই রাজীব ব্যানার্জি বিরুদ্ধে। কলকাতা যে পূর্ব মেয়র ছিল আপনার বিধাননগরে সর্বসাচী, ও কি মাফিয়া নেই যার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলার নেই? তো আপনি মাফিয়া লোক টিকিট দিয়েছেন, আপনি ডেকেট লোক টিকিট দিয়েছেন, আপনি লোহা মাফিয়া को টিকিট দিয়েছেন, আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলছেন আপনি। আর আপনি নিজে একটা মাফিয়া। আপনি আপনার থেকে বড় মাফিয়া ভারতবর্ষে কে আছে? যে মার্ডার কেসে আপনি জেল গিয়েছেন, আপনার থেকে বড় মাফিয়া ভারতবর্ষে কে আছে? কি আপনি কি দেখতেন? পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ দেখছে, समय আসতে দিন, পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ জবাব দেবে। আর সোনার বাংলার কথা আপনি বলছেন, এই তো আমরা বলে আসছে। আমরা বামফ্রন্টে 34 সালে শাসনের বিরুদ্ধে যে লড়াই করতাম, उस समय আমরা বলছিল আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস को ক্ষমতাতে লেকে আসুন, আমরা সোনার বাংলা করে দেখিয়ে দেব। 2011 থেকে 2021 এই 10 বছর পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা দি হওয়ার পর আজকে মমতা দি দেখিয়ে দিয়েছে সোনার বাংলা। এই সোনার বাংলার মতলব আপনি জানেন? আপনার একটা স্টেট, আপনার মধ্যপ্রদেশ, কতদিন আপনি রাজ করেছিল, মাঝে কিছুদিনের জন্য কংগ্রেস আসেছে। আপনি ইউপিতে রাজ করছেন, আপনি অতদিন গুজরাটে রাজ করেছিল, আপনি অতদিন রাজস্থানে রাজ করেছিল, আপনি অতদিন আসামে রাজ করেছে 5 বছর, বিভিন্ন স্টেটে আপনি রাজ করেছেন। আপনার স্টেট থেকে দেখা যাবে 100 এর মধ্যে 80% পশ্চিম বেঙ্গল ভালো, আপনাকে জানতে হবে। আপনি কিছু জানি না বলে এরকম কথা বলছে। পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ ভালো করে জানে। আর আপ পুলিশ को চমকাচ্ছে, পুলিশ को চমকাচ্ছে 2 তারিখ আসতে দিন। আর তৃণমূলের কার্যকর্তা আর লিডার को চমকাচ্ছে 2 তারিখ আসতে দিন, রেজাল্ট আউট হতে দিন, জেলে ঢুকাবো। আপনার ক্ষমতা আছে জেলে ঢুকাবে? আপনি মুগেরিলালে স্বপ্ন দেখে বসে আছেন। অমিত শাহ পশ্চিম বেঙ্গলে ক্ষমতাতে আসছে, জেলে আমরা ঢুকাবো। 2 তারিখ আমার পরে আমরা ক্ষমতাতে আসছে, 2 তারিখ জানে যাবেন। আপনি কি জেল ঢুকাবেন? আপনারা तीसरा জায়গাতে থাকবেন, तीसरा পজিশনে থাকবেন। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিম বেঙ্গলে সরকার গঠন করবে। আপনি যে ডায়লগ মারছেন না, কি বাই খাওয়াচ্ছেন আপনি তৃণমূলের কার্যকর্তাকে, নেতৃত্বকে বাই খাওয়াচ্ছেন, আপনি চমকাচ্ছেন। আমরা 34 সালে বামফ্রন্ট শাসন को देखिए আসছে। তৃণমূলে कोई कार्यकर्ता, তৃণমূলে कोई নেতৃত্ব
अपना अपनी चमकावे तो कोई बाय खावे ना। हम लोग हिम्मत का साथ पार्टी किया है वामफ्रंट का समय। 34 साल का उस शासन था, उसका विरुद्ध में हम लोग लड़के आया। और आप आके यहाँ आके खड़ा हो गए, आपको कमदा भी आया नहीं। आप यहाँ अरे कमदा का खाली स्वप्न देख रहा हूं और आपको कमदे मिला नहीं। आप बोल रहा है तृणमूल के आदमी लोग को लॉकअप में ढुका देगा, केस खिला देगा 2 तारीख के बाद। उल्टा ना हो जाए, आपका आदमी ना लॉकअप में जाए और आपका आदमी केस ना जाए, केस ना खाए। ये आप पहले देखिए, पहले अपना गिरवान को जाखिए आप। अब चमकाता है ये क्या डरने वाला है क्या? हम लोग ममता दी का फोर्स है, ममता दी का नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहा हूं। 34 साल का वामफ्रंट को हटा के हम लोग कमता में आया। और आपका ये चमका चमकी में डरने वाला कोई तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं। अमित शाह जी आपको अच्छा से जानना चाहिए, आप भी एक तो माफिया है और ये माफियागिरी यहाँ के मत दिखाइए। ये हरेन पांड्या मर्डर केस का आसामी है आप, और आप आके यहाँ चमकाने के लिए आया। तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये सब बात सुन के चमकेगा नहीं, आप अच्छा से समझिए। और आप बोल रहे अब तक का मतदान में 122 सीट हम लोग को मिला है। ये क्या पब्लिक को भूमक बना रहा है? अब क्या अपना ऑक्सीजन दे रहा है क्या आप अपना कार्यकर्ता को? हमको लग रहा है आप ऑक्सीजन दे रहा है अपना कार्यकर्ता को। आपको मालूम नहीं, अब तक का मतदान में 120 से ज्यादा सीट तृणमूल कांग्रेस जीत चुका है। काउंटिंग आने दीजिए तब मालूम होगा। हम लोग 175 से 200 को ऊपर हम लोग जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको कुछ मीडिया मिला है, वो मीडिया आपको दिखा रहा हूं आप जीत रहा है। अरे बासाबासी राजनीति पश्चिम बंगाल में चलेगा नहीं। हम कुछ दिन पहले भी हम मीडिया में बोला था, आपका प्रेस मीट में बोला था। अब यहाँ बासाबासी को डिबेट करने मत आइए, आप ही को नुकसान होगा, आप ही को नुकसान होगा। तृणमूल भारी बहुमत का साथ में कमदा में रहेगा और आपको नुकसान होगा। आप पश्चिम बंगाल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पश्चिम बंगाल का इतिहास आप जानता नहीं है, पश्चिम बंगाल का संस्कृति भी आप जानता नहीं, इसलिए आप ये बात बोल रहा हूं। आप जो आपका जो कार्यकर्ता को जो उस्काने के लिए, कार्यकर्ता को ऑक्सीजन देने के लिए जो बोल रहा है ना 122 सीट मिल रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस 120 सीट से ज्यादा जीत रहा है, ये अच्छा से जानता है। इसलिए वो अपना कार्यकर्ता को जो डर गया अपना कार्यकर्ता, उसको ऑक्सीजन देने के लिए ये बात बोला है वो। और एक तो बात पर आ रहा हूं, दीदी बंगाल का संस्कृति नष्ट कर रहा है। कौन बोल रहा? नंदा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। इसको बंगाल का संस्कृति के बारे में क्या मालूम है? इसका बेटी बंगाल में है क्या? इसका भाई बंगाल में है क्या? इसका माँ बाप बंगाल में है क्या? इसका कोई पूर्व पुरुष बंगाल में है क्या? जो बंगाल में रह रहा है वही है ना बंगाल का संस्कृति के बारे में मालूम है? इसको क्या मालूम है? जुम्मा 8 दिन में आया बीजेपी का गिफ्ट में, आरएसएस का गिफ्ट में, भारत वर्ष का बीजेपी पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इसका पहले आप नंदा जी का नाम कभी जिंदगी में सुना है आप लोग? आप लोग बोलिए ना, हम तो इतना दिन का राजनीतिक में, 34 साल का राजनीतिक में, ये 80 का बीजेपी जन्म होने के बाद 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ था, आज तक नंदा के बारे में हम कभी जिंदगी में नहीं सुना। वो एटो पार्टी का मेंबर था, ना पार्टी का सेक्रेटरी था, ना पाड़ा का एटो कार्यकर्ता था। हर वो आके बोल रहा हूं बंगाल का संस्कृति दीदी नष्ट कर रहा है। इसका मतलब बंगाल का संस्कृति वो अच्छा जानता है। उसका बेटी यहाँ है, उसका बेटा यहाँ है, उसका बहू यहाँ है, उसका माँ यहाँ है, उसका बाप यहाँ है। कुछ नहीं है, यहाँ इलेक्शन में आया प्रचार करने के लिए और संस्कृति जान गया। ऐसे ऐसे बतौड़ा यहाँ मत करिए। आदमी लोग बुड़वक नहीं है, अच्छा से जानता है, पढ़ा लिखा आदमी है, जानकारी है। बंगाल में हम लोग रहता हूं, अगर आपका कोई यहाँ रहता है तो हम लोग को मालूम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं बंगाल का संस्कृति क्या है। जो बंगाल में रहने वाला हिंदीवासी, बंगाल में रहने वाला बंगलावासी, बंगाल में रहने वाला तमाम वासी जानता है बंगाल का संस्कृति क्या है। ये नंदा जी कुछ नहीं जानता, ना अमित शाह जानता है।
बेकार ये सब डायलॉग आके वोट का समय वोट लेने के लिए बोलता है, जितना बोलेगा उतना वोट उसका खराब होते जा रहा है। और एक तो पांडेसर का कैंडिडेट बोल रहा था विश्वनाथ परियार के बारे में 8 बार अनुरोध किया था बीजेपी में जाने के लिए। हम आपको एक बात बोल रहा हूं, अब मेरा बात को विश्वास करे ना करे, मेरा जो तजुर्बा है यही माल जीतने के बाद हारने के बाद, जीतेगा तो नहीं, हारने के बाद आवाज तृणमूल कांग्रेस में आ रहा है। कलकत्ता के तो नेता से लिंक बना के रखा हुआ यही माल अब मिला के देखिए 1 साल के अंदर 6 महीना के अंदर अगला दुर्गा पूजा पार होगा कि नहीं। देखिए अब आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ के बोलेगा ममता दी जिंदाबाद, दीदी छेड़े कोई नहीं, दीदी हमारा सब कुछ। ये तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेगा। बीजेपी, इसलिए बीजेपी का बहुत नेता उसका प्रचार में जाते नहीं है। उन लोगों को भी मालूम है ये माल पैसा बचाने के लिए आया है, केस बचाने के लिए आया है, जेल डूबने से बचने के लिए आया है। आज नहीं तो कल भाग जाएगा। इसलिए बीजेपी का कोई नेता दिल से वहां प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है। वही विधानसभा में हकीकत का बात है, बहुत नेता से हमारा बात होता है बीजेपी का। आप लोग भी देखिए कौन है तो बीजेपी का नेता वहां प्रचार करने के लिए किया। अगर आज मेरा प्रेस मीट में मेरा बात सुन के अपना नौकरी बचाने के चक्कर में कोई नेता कल अगर चेहरा दिखाने के लिए किया हुआ ना बात, हम यहां बोला है बोल, इतना दिन में कौन है तो बीजेपी का नेता वहां गया। इसलिए वो क्या किया, कुल्टी में 2-4 टनिया है उसका, आसनसोल रूरल में 2-4 टनिया है, आसनसोल में 2-4 टनिया है। ये सब टनिया को लेकर प्रचार कर रहा है कहां, पांडेश्वर में। उसका साथ अगर 30 आदमी चलता है, 40 आदमी चलता है तो आप गिन लीजिए पीछे गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ, तो देखिएगा 40 में 30 तो आसनसोल का आदमी है। अगर वो सच्चा पार्टी में कार्यकर्ता बन के गया रहता तो उसको बोलना चाहिए था हमारा पांडेश्वर का बीजेपी का कार्यकर्ता मेरा के लिए काम करेगा, और विभिन्न जो विधानसभा में जो मेरा जो साथ रहता था हमको मानने वाला, वो अपना एरिया में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसके लिए काम करो, मेरा पीछे मत घूरो। मेरा ये कभी बोलने का साहस है उसको। इसलिए आप सोच लीजिए, फिर ये आपको तृणमूल कांग्रेस में आने के लिए रास्ता बना रहा हूं। कलकत्ता का हमारा एक सीनियर नेता का जरिए अब रूप कॉन्टेक्ट कर रहा हूं। ये सब ड्रामा है। इस आदमी का कोई औकात है? कितना आदमी का पाँव पकड़ेगा? कल ममता दी का पकड़ा था, आज अमित शाह का पकड़ रहा हूं, कल और किसी को और पकड़ेगा। इन लोगों तो पाँव पकड़ने में आपको जो गिरगिट का जैसा रंग बदलने वाला आदमी लोग है, इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वहां का जनता अच्छे से जानता है इन लोगों को जिताना नहीं है। आपको हम लिख के दे रहा हूं, ये सब आदमी कभी जीतने वाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल का धरती में आके पश्चिम बंगाल का संस्कृति ना जान के जो बाहरी नेता यहाँ आके खड़ा होके ममता दी का विरुद्ध में बोलेगा, यहाँ का संस्कृति का विरुद्ध में बोलेगा, पश्चिम बंगाल का मनुष्य एक होके, पश्चिम बंगाल का जनता एक होके, पश्चिम बंगाल का वोटर एक होके तृणमूल कांग्रेस को साथ देगा। भारी बहुमत का साथ तृणमूल कांग्रेस जीत के आ रहा है। यही बात हम आपका आज मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं। जितेंद्र तिवारी माफिया है, क्या कह रहे हैं? माफिया नहीं रहता तो पीछे 50 गुंडा लेके काहे चलता? कुछ दिन पहले बीजेपी वाला का ऊपर कौन हमला किया, बीजेपी वाला का ऊपर गोली कौन चढ़वाया, तृणमूल में रखे, यही तो माफियागिरी किया। आप भी तो कैमरा लेके उसका फोटो खींच रहा था, रोड का ऊपर रिवॉल्वर लेके खड़ा होता था। पहला माफिया लोग, लोहा माफिया लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता लोग जो घेराव करने के लिए गया था उसको मारने के लिए, आप ही लोग तो फोटो उठाया था। उसका नायक कौन था, उसका लीडरशिप कौन दिया? अपने आप में माफिया कौन बोलता था? वो अपने आप को माफिया बोलता था। कुछ दिन पहले एक तो वीडियो वायरल हुआ था मोबाइल में, हम देख रहा था फेसबुक में, उसमें वो क्या बोला, ज्यादा से कुछ बोलना शुरू करेगा, तुम ज्यादा बेसी बोलेगा तुमको उठा के हम लेके आएगा। तो इसका आप लोग सुना, एक बार आप लोग सुना ये चीज, ये उठा के लेके आने वाला डायलॉग तो सुना होगा। उसका बाबा का कमल आया, उठा के लेके आए। कभी जिंदगी में तो मक्खी मारा, तुम साला उठा के लेके आएगा।
तुम्हारा क्षमता है साला, टेलीफोन में छमका रहा है, तुम एमएलए था, मेयर था, आज तेरा पीछे 10 तो सीएसएफ मिला है, इसलिए छमका रहा हूं। एक सप्ताह बाद इलेक्शन पार होने दे, उसके बाद तुम छमकाएगा तो तुम मर्द का बच्चा है। तो इसका हम मतलब लोग भी देखेगा, हम लोग भी आसनसोल में है, तुम भी आसनसोल में। इसका मतलब एक माफिया को आप लोगों ने मेयर बनाया, जिला प्रेसिडेंट बनाया और विधायक भी बनाया। सुनिए भाई, आप बुरा के मत बोलिए। हम लोग जिस समय बना रहा था वो माफिया नहीं था। हम लोग बना रहा तो फुटपाथ में था। हम लोग अच्छा है, अच्छा इंसान है, ये आगे के लिए पार्टी का रास्ता अच्छा दिखाएगा, क्षमता में बैठ के संगठन को मजबूत करेगा, साधारण जनगण का सुख दुख में साथ देगा, इसलिए हम लोग बनाया। बनाने के बाद हम लोग समझ गया ये आदमी देखे तो निकला, ये आदमी गुंडा का बात कर रहा हूं, ये आदमी कुछ दिन में सब नेता को ओवरटेक करने के लिए कोशिश कर रहा था। इस आदमी का मन में अहंकार आया, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इसको आस्ते आस्ते साइड करना शुरू किया। आप लोगों को भी मालूम है, मेरा एक नेतृत्व का मीटिंग में उसको एक दिन झाड़ भी पड़ा था, वो झाड़ के बाद वो अपना कूटना शुरू कर दिया था। उसका दिमाग वो समझ गया और ये दल के अंदर में हमको रास्ता नहीं। कुछ दिन बाद देखिए ना, उसको अपने लॉकअप में जाने पड़ेगा। अच्छा दादा, 2 तारीख को फिर वो आना चाह रहा तृणमूल, आपको ले लेंगे? अरे वो क्या, बहुत आदमी आने के लिए लाइन लगाया। वो माफिया, जो लोग माफिया है, वही माफिया को पार्टी में जगह नहीं। 2 तारीख के बाद आप बोले कि पार्टी फिल्टर हो गया, कचरा लोग पार्टी से निकल गया, पार्टी फिल्टर हो गया। ममता दी पार्टी को फिल्टर किया, यही फिल्टर में पार्टी आगे बढ़ेगा। ममता दी इसको नेतृत्व दे रहा हूं। इन लोग की क्या अवस्था है वो आप लोग देखिए। इन लोगों की जो अवस्था है ना, 2 तारीख के बाद आप देखिए, फिर एरिया छोड़ के भागेगा। বিভিন্ন দেশকে আসামি है ना। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো বিভিন্ন মিটিং এ বলছেন যে এখনো যাদের প্রার্থী করা হবে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ আছে যারা আগামী দিনে দল ছেড়ে দিতে পারে, কি বলবেন? আমার নেত্রীর বক্তব্যে আমি আপনাকে জবাব দিতে চাই না। আমার নেত্রী যার আশীর্বাদে আমি বসে আছি, যার হাত আমার মাথাতে ছিল বলে আজ আপনার সামনে আমি বসে আছি। আমার যার बेसिकली यहाँ पे वोट किस विषय में होगा, विकास या धर्म? धर्म को चेष्टा कर रहा हूं बीजेपी, विकास का मुद्दा तृणमूल कांग्रेस उठाया, ममता दी उठाया। हम लोग विकास के नाम पर, साथ में हम लोग धर्म का नाम पर, ऐसा बात नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम को डिबेट करें, हिंदू मुस्लिम को लड़ाए। कुछ दिन पहले तो आप सुन रहा होगा, कुछ नेता ऐसा भाषण दे रहा था, जिस आदमी क्षमता में बैठा हुआ था उस समय आपको बस्ती बाजार का मुद्दा उठा था, उसी का समय आप प्रशासन को देके वो बंद कराया। और वही आदमी कुछ दिन पहले स्टेज में खड़ा होकर मोदी जी का मीटिंग में बोल रहा हूं, हम अपना खुलवाएगा ही। ये जो बंद किया ममता दी, हम खुलवाएगा। ममता दी को उसके बारे में क्या जानकारी है आप लोग बोलिए। तो ये खुलवाने का जिम्मेदारी किसका है? जैसे कि इस सब सुनिए, इस सब के बीच में हम लोग नहीं जाता हूँ। हम लोग चाह रहा हूँ, किसी को मुद्दा देखिए हम खुद हिंदू है, आप लोग में कोई मुस्लिम है, आप लोग में कोई क्रिश्चियन है। हम लोग सभी एक होकर रहने चाहता हूँ, शांति से रहने चाहता हूँ, बंगाल को आगे बढ़ाने चाहता हूँ। कल मंच से अमित शाह ने कहा था कि बंगाल को 3 तरह के लोगों में दीदी ने बांट दिया है। पहला, बाहर से आए घुसपैठिए, दीदी को जान से प्यारे हैं, ठीक है। दूसरा, बंगाल की जनता को। एक मिनट, बाहर से आया घुसपैठी में कौन है? जोगी जी घुसपैठी है। दूसरे देश का बाहर का बोले, नंदा जी घुसपैठी है, ठीक है। अमित शाह घुसपैठी है, नरोत्तम मिश्रा घुसपैठी है। ये लोग तो बाहर से आया हुआ, ये लोग ना यहाँ का वोटर है, ना ये लोग का आधार कार्ड है, ना ये लोग का बाल बच्चा है, ना ये लोग का बेटी लोग का शादी यहाँ हुआ, ना ये लोग का बेटा का शादी यहाँ हुआ, ना ये लोग का कोई ससुराल है। तो ये लोग घुसपैठी है। तो कल आज जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी क्या घुसपैठिए होंगे? के आज जो आ रहे हैं, देखिए हम एक तो बात बता रहा हूं, हम आपको मीठू चक्रवर्ती के विरुद्ध में बोला, अमीषा पटेल हम आपको मीठू घुसपैठिए चक्रवर्ती, इसलिए हम ये बात को जवाब दे रहा हूं, हम आपको मीठू चक्रवर्ती के बारे में बोला, वो आर्टिस्ट है, वो आपको वो आज इसमें है, कल उसमें है, परसों दूसरा में है, तीसरा में है। अमीषा पटेल को आप लाया, आज यहाँ प्रचार में है, कल दूसरा प्रचार में भी जा सकता है, उसका बारे में आप बोल नहीं सकता है। ये तो ये लोग आर्टिस्ट है,
आप पार्टी के बारे में बोलिए, पार्टी का नेतृत्व के बारे में बोलिए, उसका जवाब हम दे सकते। बोलिए। और दूसरा था कि दीदी अपने यहाँ लोगों को अपना संस्कृति का पालन करने नहीं दे रही हैं। कौन संस्कृति का पालन करने नहीं पूजा दिया? पद्धति का संस्कृति को पालन करने सुनिए, नहीं दे रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, यहाँ काली पूजा हो रहा है, यहाँ मनसा पूजा हो रहा है, यहाँ छठ पूजा हो रहा है, यहाँ दिवाली हो रहा है, यहाँ होली हो रहा है, यहाँ बजरंगबली का पूजा हो रहा हूँ, राम का पूजा हो रहा हूँ, शिव का पूजा हो रहा हूँ, गणपति का पूजा हो रहा हूँ, मुसलमान अल्लाह को मानता है, क्रिश्चियन गॉड को मानता है। तो यहाँ कहाँ आपको यहाँ संस्कृति में आपको डिफरेंस किया है? आप बताइए। एकमात्र स्टेट है पश्चिम बंगाल, यहाँ सभी आराम से रह रहा हूँ और अपना अपना धर्म का, अपना अपना भगवान का पूजा इज्जत के साथ पश्चिम बंगाल में आप लोग कर सक रहा हूँ, हम लोग कर सक रहा हूँ। दूसरा स्टेट में करिए ना, तब आपको मालूम होगा। आपको मालूम था कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ था कहाँ? कौन तो पूजा का विसर्जन हुआ था ना आपको बिहार में, उसको चलते दंगा हुआ था, गोली चला था, कुछ आदमी का मौत हुआ था। बंगाल में कभी सुना है आप छठ पूजा में गोली चला, दुर्गा पूजा में गोली चला? कभी सुना है? होली में गोली चला? हम लोग जानता है होली होता है, खुशी का बात है, थोड़ा बहुत आदमी एकदम चुटपुट रहता ही है, मस्ती लेता ही है, ये तब होता ही है, ये सभी करता है, हम भी करता हूँ, आप भी करता हूँ। और तीसरा उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो शरणार्थी है उनको दीदी ने 10 सालों में उनका हक नहीं दिया है। क्या बोल रहा है? अमित शाह। ऐसा बेईमान आदमी, ऐसा बेशरम आदमी हिंदुस्तान कभी नहीं देखा। पक्का बेशरम आदमी है ये आदमी। आपको 19 का इलेक्शन के बाद बोला था एनआरसी लागू करेगा, सीएए लागू करेगा, शरणार्थी के लोगों को भगा देगा, यही बात है, यही आदमी बोला था। इसलिए बोला बेशरम आदमी है ये। और वो आदमी आज बोल रहा है ये बात, शरणार्थी को तो भगाने के लिए यही तो बैठा हुआ था, वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा था यही आदमी। अरे यही आदमी ये डायलॉग मार रहा, इसको शर्म होना चाहिए। वो देख रहा है ये बात बोलने से हमको यहाँ वोट नहीं मिलेगा, हमारा वोट है वाला वोट भी चले जाएगा, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। आसाम में क्या किया था इशू में, बंगाल में कितना जबीरा पकाया है। बाद में इसको मालूम हुआ जब लोकसभा इलेक्शन के बाद 3 विधानसभा इलेक्शन भारी बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा में आया था बाई इलेक्शन, लोकसभा का 2 महीना बाद। फिर इसको मालूम हो गया या एनआरसी का मुद्दा बंगाल में ले लेगा, सीएए का मुद्दा बंगाल में ले लेगा तो हम लोग बचने नहीं सकेगा, डूब जाएगा। इसलिए इलेक्शन में एक मुद्दा को बोरा में बांध के फेंक दिया। काहे मोदी जी ये मुद्दा नहीं उठाया, सबको भगाएगा। अभी काहे पक्ष में बोल रहा हूं, इसलिए तुम बोला ये आदमी बेशरम आदमी है, ये देश का होम मिनिस्टर बनने का लायक नहीं, ये कोई माफिया सरदार बनना चाहिए था, माफिया लोग है। बोलिए और कुछ, बहुत कुछ मसाला मिल गया। ये आज के कोटा